हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक डिक्टेशन दे रहा हूँ लीगल पैसेज की। और ये उसकी स्पीड होगी जैसा कि मैंने थंबनेल में मेंशन किया है उस हिसाब से होगी। और ये पैसेज या ऐसे पैसेज और भी जो होंगे लीगल के, वो आपकी किसी भी स्किल एग्ज़ाम के लिए काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कोर्ट में कोई सिलेबस नहीं होता। ऐसे पैसेज जो होते हैं लीगल, वो किसी भी लीगल आपके हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं भी ये पैसेजेस आपके काम आएंगे। और डिक्टेशन के बाद में मैंने जो भी आउटलाइंस मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट लगी हैं, मैंने उनके आपको आउटलाइंस भी दिखाई हैं, और जहां मैं समझा सका तो मैंने समझाया भी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आउटलाइंस को आप पहले मत देखिएगा, आप पैसेज को करिए। अनसीन की तरह जैसे है आपके लिए पैसेज है, उसको करिए, ट्रांसक्राइब करिए। उसके बाद चेक करने के बाद आप आउटलाइंस देखिए जो आपको नहीं आती होंगी, और आउटलाइंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको फिर रीराइट करिए पैसेज को। मे बी ओरिजिनल स्पीड पे भी कर सकते हैं और इंक्रीज़ करके भी कर सकते हैं। तो तभी देखिएगा आपको अपने आप लगेगा कि जो पैसेज आपके लिए पहले मुश्किल था आपके लिए आसान बन जाएगा। और ये वर्ड क्योंकि रिपीट होते रहते हैं, आपको उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। लास्टली, डिक्टेशन शुरू होने से पहले मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। दैट्स ऑल। अब मैं शुरू करता हूँ डिक्टेशन। प्लीज़ गेट रेडी फॉर ए डिक्टेशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 41 फ्रॉम द लीगल मटेरियल। 5 seconds. Start. Impugned in this petition is the order of the trial court dated whereby on an application filed by the respondent, the trial court awarded rupees 1700 as interim maintenance to the respondent from the date of the application, adjustable in maintenance, if any, awarded in proceedings under section 125 of the Code of Criminal Procedure or any other proceedings. Stop. Parties to the petition were married on at Delhi. Stop. Out of the wedlock of the parties, one male child, namely Gaurav, was born on 24th January 1988, who is in the custody of the petitioner when parties started living separately. Stop. This resulted into criminal as well as civil litigation inter se, the parties, including the divorce petition filed by the petitioner. Stop. Before petitioners filing petition seeking divorce under section 13 of the Hindu Marriage Act. Stop. However, the said petition was contested by the petitioner and it was dismissed by the trial court. Stop. It seems that earlier also respondent had filed a petition, but she withdrew the same. Stop. She filed another petition and her application for interim maintenance was dismissed. Stop. The revision petition against the said order was also dismissed. Stop. She lost her revision petition. Stop. Proceedings are also pending against the petitioner and his family members. Stop. It is submitted by learned counsel for the petitioner that petitioner is a patient of mental disease and is undergoing treatment. Stop. He is unable to earn anything and is living on the mercy of his family members. Stop. He is also a diabetic patient having disease in his leg and his left thumb has already been amputated. Stop. However, the trial court failed to consider that petitioner is suffering from the above said diseases. Stop. The court also failed to consider that one eye of the petitioner's son has been completely damaged and he cannot hear from both the ears, and it is petitioner's family members who have to spend money on his treatment. The court failed to consider that respondent, who is a graduate, is working for gain and has
her independent income for her survival. Stop. It is further submitted that the trial court did not properly consider the statement of the petitioner recorded under Order 10 of the Code of Civil Procedure while granting maintenance of rupees 1700 per month to the respondent. Stop. Learned counsel for the respondent has submitted that petitioner is working with his brothers in the joint family business and has substantial income to provide maintenance to the wife as ordered by the court. Stop. He has pointed out that petitioner has not placed on record any document to indicate that he is a patient of hypomania. Stop. Under these circumstances, counsel for the respondent has prayed that there are no merits in the petition. Stop. During the course of arguments, learned counsel for the petitioner has submitted that petitioner was suffering even in the year 1986 when he was married to the respondent. Stop. When questioned, it was admitted that he was working with his brothers in the family business of manufacturing, etc. Stop. With his entire mental ailment as is being projected before this court, petitioner married the respondent, lived with her for 3 years, cohabited with her and was blessed with a son. Stop. Under these circumstances, it becomes unbelievable that petitioner was and is not mentally fit or capable of earning his livelihood. Stop. The son born out of the wedlock of the parties is about 21 years of age as on date. Stop. Petitioner has not placed on record any document of any hospital or any private doctor to show prima facie that since before his marriage he was suffering and after some time of the marriage the intensity of the disease increased. Stop. अब आप देखिए आउटलाइंस जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगी वो मैंने ली हैं इस एक्सरसाइज में से, और ये जितने भी कंप्लीट जो एक्सरसाइज है जिसमें 603 वर्ड हैं उनमें से जो इम्पॉर्टेंट लगी वो मैंने दी हैं इसमें। और सबसे पहले वर्ड है इम्प्यून्ड। इम्प्यून्ड को आप आधा करके लिखिए और एमपी डार्क होगा। ये इम्प्यून्ड होता है जब जिस भी डॉक्यूमेंट को या ऑर्डर को या जजमेंट को जिसको चैलेंज किया गया है कोर्ट में, इम्प्यून्ड उसको बोलते हैं। इम्प्यून्ड के बाद डेफिनेटली ऑर्डर होगा या जजमेंट होगा या जो भी चीज़ जिसको हम चैलेंज कर रहे हैं वो होगी। इस केस में इम्प्यून्ड अवार्ड है, तो इम्प्यून्ड उसके बाद है ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट के नीचे अगर आप डबल टिक लगा देंगे तो आपके लिए पहचानना इजी हो जाएगा, हालांकि इसका टीसी कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आउटलाइन है डेटेड। डेटेड में डे और टिड साथ में लगाइए। नेक्स्ट आउटलाइन है अवार्ड की, और जब अवार्डेड आएगा तो डी को हाफ करिए या डी को काटिए, दोनों ऑप्शन मैंने दिखाई है नेक्स्ट में। जितना आप एक्यूरेटली लिखेंगे आउटलाइंस को डिक्टेशन लेते टाइम, उतना देखिएगा आपको स्मूथ लगेगा उसको ट्रांसक्राइब करते वक्त। उसके बाद बोला गया था बीच में ₹1700, तो 1700 को आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप चाहें तो 1700 वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें। इंटरिम और रुपीस को भी RS करके डॉट करके लिख सकते हैं, और रुपीस को RUPEES भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। लेकिन हमारे लिए जो कन्वीनियंट होगी वो होगी RS फुल स्टॉप करके, और 1700 को भी हम 1700 करके लिखेंगे, हमारे लिए वो इजी होगा। ऐसे और भी अगर आपको फिगर आती हैं तो जो फिगर आपको ठीक लगती है और इजी लगती है उसको लिखिएगा। उसके बाद इंटरिम की आउटलाइन है, इंटरिम के बाद मेंटेनेंस की है, मेंटेनेंस के बाद एडजस्टेबल है। अब एडजस्टेबल में डी जो है उसकी साउंड नहीं होती ऑलमोस्ट,
साइलेंट होता है, एडजस्टेबल होता है, और हम एडजस्टेबल भी बोल देते हैं, बट एडजस्टेबल है। और ऐसे आउटलाइन है इसकी, आप जैसे देख रहे हैं। उसके बाद प्रोसीडिंग्स को आप प्रोसीड करके नीचे जो है डैश दे सकते हैं, प्रोसीडिंग INGS वाला डैश दे सकते हैं। उसके बाद अंडर सेक्शन है, इसे सिंपल आउटलाइन, कुछ ऐसा नहीं है, फिर भी मैंने दे दी है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड के साथ F हो गया, क्रिमिनल KR आ गया, और प्रोसीजर हमें सबको पता ही है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। वेडलॉक, ये सिंपल है। गौरव को आप चाहे आउटलाइन लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। नेक्स्ट आउटलाइन देखिए आप, प्रैक्टिशनर की है। प्रैक्टिशनर के बाद मैंने ऑब्लिक करके आपको पैटिशनर की भी वैसे दी है, अगर आप चाहें तो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, मैंने पहले भी अपनी डिक्टेशंस में बताई थी ये। और उसके बाद वर्ड है इंटरसे, INTERSE, 2 वर्ड हैं इंटर से, लैटिन फ्रेज है। इंटर से मीन्स अमंग्स देम या बिटवीन देम, 2 के बीच में या 2 से ज़्यादा के बीच में। नेक्स्ट देखिए डाइवोर्स, डाइवोर्स में आई लगा दीजिए तो भी ठीक है, अदरवाइज वैसे भी ठीक है। और हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के नीचे अगर आप सबके नीचे डबल टिक लगा दें तो आपको दूर से पहचानने में आसानी होगी कि ये जो है एक्ट का नाम है। नेक्स्ट आउटलाइन है कंटेस्टेड। जब कंटेस्ट होगा तो जैसे हम टेस्ट के ऊपर कौन लगाते हैं वो होगा, जब कंटेस्टेड होगा तो आप देखिए ऐसे लिखना होगा। नेक्स्ट आउटलाइन है इट सीम्स, इकट्ठा लिख सकते हैं, सिंपल हैं। उसके बाद विथड्रू, विथड्रू ऐसे दोनों आउटलाइन दी है मैंने, आप चाहें तो लिखिए और चाहें तो वो लिखिए जो आपको कन्वीनियंट हो पढ़ने में। नेक्स्ट है लर्नेड काउंसिल, लर्नेड काउंसिल में L लिख के काउंसिल लिख सकते हैं, और ऐसी आउटलाइन काउंसिल में L लगा मीन्स लर्नेड काउंसिल ही होगा, और कुछ बनता नहीं है इससे। नेक्स्ट इज पेशेंट, सिंपल वर्ड। उसके बाद है मेंटल, मेंटल आप चाहे MNTL कर दीजिए और चाहे तो MNTL की हुक करके कर दीजिए, दोनों पढ़ सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। नेक्स्ट इज मर्सी, मर्सी को आप देख रहे हैं कैसे लिखना है। उसके बाद डायबिटिक है, डायबिटिक का ऑप्शन तो यही है, DBT के पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद डिसीज, उसके बाद एम्प्यूटेटेड, एम्प्यूटेटेड MP लिखना पड़ेगा, टेटेड। उसके बाद मैंने आउटलाइन दी है टू कंसीडर दैट, ये नॉर्मल ज्वाइनिंग है, गुड अच्छे फ्रेज हैं, टू कंसीडर जोड़ना, और उसके नीचे दैट भी कर सकते हैं हम। नेक्स्ट फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा लिख सकते हैं, फैमिली लिखा हुआ उसके साथ मेंबर्स ही होगा, इस अंडरस्टूड, फैमिली मेंबर्स ऐसे लिख सकते हैं। फिर मैंने आउटलाइन दिया आपको हैज़ बीन और स्पेंट। मैंने देखा है स्टूडेंट हैज़ बीन, जब स्पेंट बोला जाता है तो हैज़ बीन कर देते हैं, जब हैज़ बीन बोला जाता है तो स्पेंट कर लेते हैं, बिकॉज दे डू नॉट एस्टिमेट द साइज ऑफ द आउटलाइन। तो हैज़ बीन और स्पेंट में फ़र्क जब तक नहीं होगा तब तक आप हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे। प्रॉपरली लिखिए ताकि प्रॉपरली आप उसको ट्रांसक्राइब कर सकें। फर्स्ट वर्ड देखिए ग्रेजुएट, उसके बाद है ग्रेजुएट में मैंने यू नीचे लगाया, लगाएंगे तो आपको भी आसानी होगी पढ़ने में, अदरवाइज यू लेफ्ट में लगाना मुश्किल हो जाता है, तो उसके साथ भी आप लगा सकते हैं। सर्वाइवल, सर्वाइवल देख रहे हैं आउटलाइन। तो उसके बाद है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर है वैसे सिविल प्रोसीजर है, तो इसमें भी आप देखिए कोड ऑफ करके सिविल को PR से काट सकते हैं। नेक्स्ट आउटलाइन मैंने आपको दी है ऑर्डर और ऑर्डर्ड। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ऑर्डर होता है तो कैसे लिखना है, ऑर्डर्ड होगा तो कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट मैंने आउटलाइन आपको दे दी है पॉइंट आउट और पॉइंटेड आउट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट आउट होगा तो T पूरा दीजिए, पॉइंटेड आउट होगा तो T हाफ दीजिए। और देखिए अगर आप ऐसे लिखेंगे तो पहचान पाएंगे। हाइपोमीनिया वर्ड आया था, हाइपोमीनिया आप ऐसे लिख सकते हैं, पूरी आउटलाइन डालनी पड़ेगी।
उसके बाद मैंने दिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, अगर आप लिख सके तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, इसके साथ द आ जाए तो एक टिक और दे दीजिए द का। नेक्स्ट आउटलाइन मैंने दी है, वर्ड आया था क्वेश्चनड, तो आप क्वेश्चन की आउटलाइन दी है, फिर मैंने क्वेश्चनड में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको या तो टी को हाफ लिखें या उसको बीच में से काट दीजिए। ब्रदर्स सिंपल आउटलाइन है। उसके बाद मैंने आउटलाइन दी है कोहैबिट। कोहैबिट में पहले बी हाफ आएगा, मैंने गलती से लिख दिया, आप इसको बी को हाफ करेंगे, कोहैबिट आएगा। कोहैबिटेड है हमारे पास जो वर्ड आया डिक्टेशन में, कोहैबिटेड, तो उसमें टी बाद में हाफ आएगा। नेक्स्ट वर्ड इज बिलीवेबल। बिलीव हम लिखते हैं, बिलीव के साथ हमने बीएल लगाना है, बिलीवेबल, क्योंकि ये ऐसी आउटलाइन है तो एकदम हमारे माइंड में आती नहीं है। बिलीव तो आएगा, लेकिन बिलीवेबल कैसे बनाना है वो हम जब तक प्रैक्टिस में नहीं करेंगे थोड़ा, तब तक नहीं आएगा। नेक्स्ट वर्ड इज लाइवलीहुड। लाइवलीहुड जानते हैं, लाइवली के साथ डी लगा दीजिए, लाइवलीहुड हो जाएगा वो। प्राइमा फेसाई, इट्स दीज आर टू वर्ड्स, PRIMA, प्राइमा फेसाई, FACIE, दो वर्ड हैं और दोनों में स्मॉल लेटर्स हैं सभी। लैटिन फ्रेज है। प्राइमा फेसाई ऑन द फर्स्ट लुक कह सकते हैं, या ऑन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। प्राइमा फेसाई आप आउटलाइन जोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आउटलाइन है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में पहला एन हाफ आएगा, दूसरा पूरा आएगा। इंटेंसिटी, तो ये इसकी आउटलाइन है। दैट्स ऑल, थैंक यू।